بھارتی وزیر خارجہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان آئیں گے اور SCO کا موقع ہے جب بذات خود یہ بھارت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ریپرزنٹیشن بھارتی وزیر خارجہ کے تھرو ہوگی. مزہ صاحب، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس دورے سے؟ شنکر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو بھی بھیج دیں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے، تو بڑی اچھی خبر ہوگی. In the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. 2050 میں چائنا اور انڈیا دونوں کی معیشت امریکہ کو انڈیویجولی کراس کر چکی ہوگی. اب جو دور ہے نا وہ خطوں کا دور ہے، وہ ممالک کا دور نہیں ہے. اب جو ہے نا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہو، ایک اچھا کاروباری ملک ہو. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ترقی کریں، ہمارے آپس میں اچھے تعلقات ہوں. اب کے پنش پاکستان پروجیکٹ تو وہ اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں نرمی آ گئی ہے اور بھارتی حکومت نے یہ احساس شاید کر لیا ہے کہ آپ ایک 1000 کلومیٹر سرحد والے ملک کے ساتھ مستقل طور پہ اس سے فاصلہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ان کی غالباً اپنی اندرونی ایک اسسمنٹ ہے جس کے تحت انہوں نے بالآخر فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہے سارک میں بہت ساری میٹنگ ہوئی اور پاکستان کے ساتھ جو وہ کر سکتے تھے کیا. کرکٹ ٹیم کو نہیں جانے دیا، ان کی کرکٹ ٹیم نہیں آئی. تو یہ اس کی اندرونی یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. تو آج کی خبر یہ ہے کہ ایس جے شنکر جو کہ بھارت کے فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان جا رہے ہیں. اس میں پاکستان کے بہت خوشی ہو رہی ہے اندر سے، چونکہ 8 سال بعد کوئی بھی بھارتی منسٹر پاکستان جا رہا ہے کسی بھی موقع پر. وہاں پر SCO کی میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ پچھلے سال بھارت میں ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے فارن منسٹر بھی آئے تھے، اور اس بار پاکستان میں ہو رہی ہے. اور اب بھارت کے فارن منسٹر پاکستان جا رہے ہیں، جس میں پاکستان بہت خوش ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر آپس میں کچھ بات چیت ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. دیکھتے ہیں آگے ویڈیو، پھر بات کریں. In the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. بھارتی وزیر خارجہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان آئیں گے اور SCO کا موقع ہے جب بذات خود یہ بھارت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ریپرزنٹیشن بھارتی وزیر خارجہ کے تھرو ہوگی. مزہ صاحب، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس دورے سے؟ شنکر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو بھی بھیج دیں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے، تو بڑی اچھی خبر ہوگی. 2050 میں چائنا اور انڈیا دونوں کی معیشت امریکہ کو انڈیویجولی کراس کر چکی ہوگی. اب جو دور ہے نا وہ خطوں کا دور ہے، وہ ممالک کا دور نہیں ہے. اب جو ہے نا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہو، ایک اچھا کاروباری ملک ہو. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ترقی کریں، ہمارے آپس میں اچھے تعلقات ہوں. اب جو ہے نا اور دیکھیے IMF نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ شاید اگر ہم اپنی سمت ٹھیک کر لیں تو یہ ہمارا آخری پروگرام ہو سکتا ہے، یا نہ بھی ہو. اگین ہمیں ایک اور بھی کرنا پڑ جائے، اس کے بعد بھی ایک اور کرنا پڑ جائے. اپنی سمت درست کرنی بڑی ضروری ہے. اور سمت کیسے درست ہوگی کہ ہم نے 77 سال میں جو کیا ہے اب سب کو احساس ہے. مجھے تو بہت امید ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی فائنلی احساس ہو گیا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائنلی احساس ہو گیا ہے. میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ اب جو ہے نا ہم نے کرنا ہے کاروبار، ہم نے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے. ہم نے جو ہے وہ کسی چیز کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. ہم یہاں پہ 24 کروڑ کی عوام ہیں جو کہ عزت دار طریقے سے روٹی کھانا چاہتے ہیں. ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، پنپنا چاہتے ہیں. ہم کوئی قلعہ ولا نہیں ہے کسی چیز کا. ہم یہاں پر اب جو ہے نا اپنا ایک بہتر طور پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے دوروں سے پاکستان وہاں جائے، وہ یہاں آئیں، آپس میں اچھے تعلقات ہوں اور ٹریڈ ہو. سب سے بنیادی چیز بھارتی سوچ کیا ہے؟ نریندر مودی صاحب خود فرما چکے ہیں کہ چھوڑو پاکستان کو، ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا، یہ آپس میں لڑ مڑ کے فارغ ہو جائیں گے. اور وہ نریندر مودی صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ وہ جن کے ہاتھ میں بم تھا، حالانکہ ان کے ہاتھ میں بم تھا، اب ان کے ہاتھ میں مانگنے والا کٹورا ہے، اور ہم نے پاکستان کے ہاتھ میں کشکول تھما دیا ہے. اور جے شنکر صاحب خود کیا فرما چکے ہیں بڑا جب بلاول بھٹو صاحب کے وزٹ کے فوراً بعد، کہ پاکستان کی حیثیت دیوالیہ ہوتی کمپنی کی طرح ہے. اور بھارتی وزیر دفاع ابھی 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم سے دوستی رکھتے، اچھے تعلقات رکھتے تو جتنا قرضہ لینے کے لیے آپ IMF کے سے تڑپ رہے ہیں اتنا قرضہ ہم آپ کو دے دیتے. حالات کے پنش پاکستان پروجیکٹ
तो वो अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें नरमी आ गई है और भारतीय हुकूमत ने ये एहसास शायद कर लिया है कि आप एक 1000 किलोमीटर सरहद वाले मुल्क के साथ मुस्तकिल तौर पे उससे फासला नहीं रख सकते हैं। तो ये उनकी गालिबन अपनी अंदरूनी एक असेसमेंट है जिसके तहत उन्होंने बिलाखिर फैसला किया। आपको याद है सार्क में बहुत सारी मीटिंग हुई और पाकिस्तान के साथ जो जो वो कर सकते थे किया, क्रिकेट टीम को नहीं जाने दिया, उनकी क्रिकेट टीम नहीं आई। तो ये उसकी अंदरूनी। तो जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं कि ज़्यादा उम्मीद लगाए रखना अच्छी बात नहीं है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ सिर्फ SCO की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी और मकसद से। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा वहाँ पर SCO की मीटिंग है, जो कि 2 ही दिन है, 15 और 16 अक्टूबर को, जिसमें वो अपना काम करेंगे और पुनः जल्द से जल्द भारत चले आएंगे। और ये सोचना कि वहाँ जाएंगे, वहाँ बायलैटरल मीटिंग होगी या किसी और तरह की मीटिंग होगी, तो ये संभव नहीं है उनके लिए भी। आपसी निगोसिएशन तो बहुत दूर की बात है, आपस में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। एस जयशंकर पाकिस्तान के बारे में बहुत फॉरवर्ड रखते हैं और उनकी राय बहुत अच्छी नहीं है। तमाम मीडिया से हमें ये पता चलता है कि एस जयशंकर पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि पिछले बार जब SCO की मीटिंग भारत में हुई थी तब वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर जो कि पाकिस्तान की थी उसने भी ये सवाल पूछा था, तो बहुत फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने जवाब दिया था, जो कि मेरे पिछले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। इस जयशंकर के पाकिस्तान आने से एक नया चैप्टर शुरू होगा। उन्होंने अपनी पॉलिसी बड़ी वाजे कर रखी है कि पाकिस्तान की, उनकी नज़र में पाकिस्तान ने उनको कारगिल के मौके पे, फिर मुंबई के मौके पे धोखा दिया, उनका एतमाद ख़राब किया, जिसके बाद उन्होंने रफ्ता रफ्ता बाकायदा एक नपी तुली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को सजा देने, पाकिस्तान को बैन-ए-अक़वामी तौर पे तनहा रखने की पॉलिसी इख्तियार की। अब लगता है कि वो शायद उस में से बाहर निकल रहे हैं और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के लिए भी ये एक अच्छा शुगुन होगा कि आप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो प्लीज उसको वो पाकिस्तान नहीं तशरीफ ला रहे हैं, वो इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। दूसरा, इंडिया ऑप्टिक्स बहुत अच्छी तरह उनको प्ले करता है, वो स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क करता है। अब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के जिस वक्त आपको नजर आ रहा है कि इजराइल और इंडिया का एक नेक्सस है और ईरान और रशिया का एक नेक्सस है, आपके ख्याल में क्यों स्पेस इंडिया खाली छोड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल या समिट डिलिबरेशंस में? सिर्फ पॉजिटिवली देखना चाहिए, एक खुशाइन तरीके से देखना चाहिए और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो कर्टसीज और जो वेलकम एक किसी भी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को दरकार होती हैं या ड्यू होती हैं इन इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, वो सारी हम उनको खुले दिल के साथ दें। एट द लेवल ऑफ द SCO की अहमियत, उसकी हिफाजत, वो मुझे आई थिंक आपको बताने की जरूरत है कि हिफाजत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। रीजनल कॉन्टेक्स्ट में दुनिया में चेंज होती हुई सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपिंग कंट्रीज के अपने रोल के लिहाज से, तो इससे ये श्योर होता है या एटलीस्ट पता चलता है कि एटलीस्ट इंडिया इसको इतनी अहमियत देता है, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर। और एट अ बायलैटरल लेवल ऑल्सो अगर वो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे आते हैं, तो आई थिंक वी शुड ओनली look at it as a positive. बहुत शुक्रिया आपका हिना रबानी का। Super excited, and you know why? Because डॉक्टर जयशंकर के बारे में कहा गया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस्लामाबाद, जहाँ पर मैं हूँ, इस्लामाबाद पे वो आएंगे और SCO की मीटिंग के लिए। वैसे तो खैर लग रहा था पहले हमें कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आपके ऑफिस की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये न्यूज आई है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान में। और भारत के बारे में कयास राय ये की जा रही थी कि वो नहीं आएगा, और जो कमेंट्री हो रही थी वो ये थी कि ये इस बात का आकाश है कि अब भारत इस रीजन में और इस रीजन में होने वाले इनिशिएटिव्स में शायद इंटरेस्टेड ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका पूरा थ्रस्ट जो है वो वेस्टवर्ड हो गया है। तो एक तो उस चीज को काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब या इंडिया में ये फैसला हुआ होगा कि वो तशरीफ लाएं। दूसरी बात ये कि रेसिप्रोसिटी बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो साहब बावजूद इंटरनल क्रिटिसिज्म के इस मीटिंग में गए थे, और जो keen observers थे वो कहते थे it is not a visit to India, it is about participating in SCO। तो बिल्कुल यही बात है, this should not be seen as a visit to Pakistan, it is participation in SCO। लेकिन जो overall understanding है वो यही है कि इंडिया जो है वो hard hedging करता है, वो बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट्स को यस कह देता है या ऑप्टिक्स ऐसे कर देता है कि उसका कमिटमेंट नजर आए, जबकि वो अपना ही नीश निकाल देता है। इंडिया वही मुल्क है जो यूक्रेन भी गया और रशिया भी गया, मोदी के इलेक्शन जीतते ही मोदी खुद गए। इसी तरह उसने ईरान में भी ताल्लुकात रखे, वॉशिंगटन को भी कल्टिवेट करके रखता है। तो हमें देखना ये है कि ये विजिट
जो है इसके में कहा क्या जाता है, क्योंकि जयशंकर बहुत वर्बली एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं। देखिए जो इंडिया में एक्सचेंज हुई थी बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान और इंडियन काउंटर पार्ट के दरमियान, वो बहुत अच्छी नहीं थी और उसने तकरीबन कदगन लगा दी थी मजीद दरवाजे खोलने के लिए। लेकिन इस वक्त जाहिर है ऑडियंस बहुत वाइड है, बहुत सारी ममालिक के सफू यहाँ मौजूद होंगे, तो ऑप्टिक्स में भारत अच्छा खेल जाता है, तो वो बहुत डिसेंटली ये विजिट निकाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई अनप्लेजेंट चीज होगी, लेकिन क्या वो कमिटेड है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उस हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। इसको कबल वक्त कहूंगी, जयशंकर पाकिस्तान नहीं आ रहे, जयशंकर शंघाई ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। द फैक्ट कि कम से कम इतनी पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान आने की हामी भरी है, एक अच्छी पेशरफ्त है। क्या इससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बहुत बड़ी मस्बत चेंज आएगी? वी शुड जंप द गन, इंतजार करना चाहिए हालात इस तरह शेप अप। इससे ये तवक्को करनी चाहिए किसी किस्म की कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। देखना अब ये है कि जब वो आएंगे, और अभी तो काफी 2-1 हफ्ते बाकी हैं, तो उनका कॉन्डक्ट कैसा होगा। इसलिए कि जब बिलावल भुट्टो गए थे उनके मुल्क, तो भारतीय वजीर खारजा की तरफ से मेरा ख्याल है जो बयानात आए थे वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल थे। हाल ही में जब इन्होंने जनरल असेंबली को एड्रेस किया, वहां उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत तनकीद की, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ हमें कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए और ना कि ज्यादा यहाँ एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि जी मार रहे हैं और उससे पता नहीं क्या हो जाएगा ताल्लुकात। चाइना और रशिया की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था हिंदुस्तान की हुकूमत पे कि भाई आपके बायलैटरल मामला ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते, उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। उसके बाद ये फैसला 11th आवर पे किया उन्होंने कि ये 11th आवर तो भी कुछ दिन बाकी है, लेकिन बड़ा लेट फैसला किया। और जबकि खबरें यही आ रही थी कि वो ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब उनका आना, अब देखते हैं कि साइड लाइन पे पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकात इससे हट के बायलैटरल लेवल पे होती है नहीं होती, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है कि ये जिस तरह का ये बड़ा फोरम है, मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि शायद अमेरिका और चाइना का दबाव अगर रहता भी है तो इस इश्यू के प्लेटफॉर्म के अलावा भी शायद बायलैटरली भी हमारे तल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सके और कोई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सके आगे के लिए। एस जयशंकर जो कि भारत के बहुत ही फॉरवर्ड फॉरेन मिनिस्टर के रूप में उभरे हैं, इससे पहले शायद ही कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हुआ होगा जो इतना सीधे तरीके से जवाब देता है। इन्होंने विदेशी मीडिया को आंख से आंख दिखा दिया है ताकि वो भारत पर सवाल नहीं उठा सके। याद हो कि यूरोपियन यूनियन में एक ने सवाल उठाया था कि भारत रूस से तेल खरीदता है, तो फॉरेन मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था कि भारत एक महीने में जितना तेल खरीदता है, यूरोपियन देश तो एक ही दिन में उतना खरीद लेते हैं। तो भारत पर ये सवाल उठाना कि भारत क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो रहा था जो कि अभी भी जारी ही है। पर भारत पर सवाल उठाने वाले तो हमेशा सवाल उठाते ही रहते हैं और फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा जवाब दिया कि वो सारे चुप हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारी पिछली वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको कोई सुझाव देना हो या कोई कमेंट